Today I want to tell you the topic of my sermon is Jesus, your healer and deliverer. आज जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो ये है कि जो यीशु है वो आपको चंगाई देने वाला और आपका छुटकारा वाला है। Who is Jesus? यीशु कौन है? The Bible says if you know the truth will set you free. वचन कहता है अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। Maybe all of your life you have been going to different places. आप अपने पूरे जीवन भर अलग अलग स्थानों में गए होंगे। Maybe you have been knocking in various doors हो सकता है आपने कई दरवाजों में खटखटाया भी for your healing, for your deliverance, अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, so that you would receive a new life. ताकि आप एक नया जीवन पा You have been going to places with all of your troubles, with all of your problems, but you have not been able to find solutions. आप जगहों में गए होंगे अपनी सारी चिंताओं के साथ, सारी परेशानियों के साथ, लेकिन वहां पर आपको कोई भी हल नहीं मिला। But when you know Jesus, लेकिन जब आप यीशु को जानते हैं, when you begin to accept Him as your Lord, God and Savior, लेकिन जब आप उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता the स्वीकार, Bible says the truth will set you free. वचन कहता है कि सच तुम्हें आजाद करेगा, Because the truth has the power to deliver man. क्योंकि सच में इतनी सामर्थ है कि वो किसी मनुष्य को छुटकारा दे सकता है। God loves you so very much. और परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रेम रखता है, He loves you so much. वो आपसे बहुत प्यार करता है। Beyond what you can ever imagine. वो पढ़ Beyond what you can imagine. जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कई ऊपर। Jesus is alive. यीशु जिंदा है, He is more alive than you can know. वो आप जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा वो जिक्र है, He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। Your well-being in all areas of your life. वो आपकी हर एक भलाई और आपकी अच्छाई को चाहता है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। God is not only a mighty tower. जो खुदा है वो सिर्फ एक सर्वशक्तिमान खम्मा या कोई टावर नहीं है, He is not only powerful, He is not only all-knowing. वो सिर्फ एक कोई सामर्थ ही नहीं है, But the Bible says that Jesus is a good shepherd. लेकिन वचन कहता है कि वो एक अच्छा चरवाहा है। A good shepherd takes responsibility for the sheep. एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ की जिम्मेदारी लेता है। Sheep is not been created, it's not designed to take anxiety and depressions. जो भेड़ है उसको इस तरीके से नहीं रचा गया कि वो चिंता करे। Sheep is tender. जो भेड़ है वो टेंडर होती है, Sheep is soft and tender. जो भेड़ है वो मासूम, It cannot survive any attacks. वो किसी भी आक्रमण को सामना नहीं करता। Jesus is the good shepherd who protects the sheep. लेकिन जो यीशु है वो एक अच्छा चरवाहा है जो अपने भेड़ों की रक्षा करता है। When God created His whole universe, जब खुदा ने इस सारे ब्रह्मांड को बनाया, He created this universe with a purpose that there should not be any sickness in this world. उसने इस ब्रह्मांड को इस सोच और विचार के साथ रचा कि इस संसार में कोई भी बीमारी ना हो। That was the original plan of God. ये खुदा का एक सबसे ओरिजिनल सही योजना But था। today we have sickness. लेकिन आज हमारे पास बीमारियां हैं, And many of the sickness that we have in our life is not connected to your food. लेकिन आज हमारे साथ जो बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां वो हमारे खाने पान से नहीं It जुड़ी, is not connected to your exercise. ये आपके कोई व्यायाम से नहीं It's जुड़ी, not because you have smoked ये इसलिए नहीं कि क्योंकि आप धूम्रपान करते or हैं because of any intoxicated things that you have consumed. या फिर कोई भी ऐसे जहरीले पदार्थ जो आप ले रहे हैं। You have received the sickness just out of nowhere. आपने इस बीमारी को ग्रहण किया है बिना कहीं जाने, Because this sickness is just not a physical sickness, because sickness is a spiritual sickness. क्योंकि जो बीमारी है वो सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं, लेकिन ये एक आत्मिक बीमारी है। Sickness is a spiritual disease. जो बीमारी है ये एक आत्मिक रोग है। Now, in order to understand this, I want you to go to the book of Luke chapter 4 verses 1 to 6. और इसको समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लूका की पुस्तक में जाएं। I request Praveen to please read in Hindi. फिर वह सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और उसे जाने दिया। और उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सबत के दिन उन्हें तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। So one day Jesus was in a place and the Pharisees were looking to trap him.
तो एक दिन जो यीशु मसीह वो किसी स्थान पर थे और जो फरीसी लोग थे वो उनको जाल में फंसाने की सोच रहे थे, because they were looking for a chance that Jesus would heal somebody on a Sunday and the Pharisees would get hold of him. क्योंकि वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे कि उस इतवार सब्बत के दिन में यीशु मसीह किसी को चंगाई दे और वो उनको पकड़ ले। The Pharisees were not concerned about the people getting healed, but they wanted to catch hold of Jesus. जो फरीसी लोग थे उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं इतवार के दिन, लेकिन उनको ये परवाह थी कि वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। Imagine the heart of a spiritual shepherd who is not concerned about the well-being of his sheep, but to trap somebody. लेकिन सोचिए एक ऐसे आत्मिक चरवाहे की जो अपनी भेड़ के भले के बारे में ना सोचे, लेकिन वो इस राह पर रहे कि वो कब उसको पकड़ ले। And if not, or whether or not Jesus would heal him, but they was looking for a chance that if Jesus would only heal him, would touch him, then they would trap him. चाहे वो व्यक्ति चंगा हो या ना हो, लेकिन वो सिर्फ इस तलाश में थे कि अगर यीशु मसीह उसको चंगाई कर दिया, सिर्फ उसको छू भी ले, वो उसको पकड़ लेंगे। Because on a Sunday, on a Sabbath day, they were not supposed to do any work. क्योंकि इतवार के दिन, सब्त के दिन ऐसा नहीं था होना था कि वो किसी को चंगाई दे। But Jesus asked a question. लेकिन यीशु ने एक सवाल He पूछा। said, what would you do if your child falls into a trap? Would you wait till Monday? तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या करोगे अगर तुम्हारा गधा या बैल कुएं में गिर जाए? क्या तुम अगले दिन के लिए इंतजार Would करोगे? you wait for the next day to bring him out because you're not supposed to work on a Sabbath day? क्या तुम अगले दिन के लिए उसका इंतजार करोगे कि अगले दिन उसको निकालो, क्योंकि तुम सब्त के दिन काम नहीं कर सकते? You will not. आप नहीं Because करोगे, if you wait for another day, then surely that child will die. क्योंकि अगर आप अगले दिन के लिए इंतजार करेंगे तो वो जो बच्चा है वो निश्चित ही मर जाएगा। In the same way, the way that Jesus looks at you goes beyond the legalistic attitude. इसी तरीके से जब यीशु मसीह आपकी ओर देखता है तो वो नियम से आगे बढ़कर चले It जाता goes है। beyond understanding of the human mind. वो इस मनुष्य की जो सोच है वो उससे ऊपर चले जाता It है। surpasses all the regulations, all the laws. वो जितने भी नियम और कानून है वो उन सब से ऊपर चले जाता The है। way Jesus loves you goes beyond your understanding. जिस रीति से, जिस प्रकार से यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है वो आपकी समझ से भी ऊपर है। His love goes to the far land where he is willing to lay down his life to save you. उसका प्यार कुछ ऐसा है कि वो दूर स्थान तक गया जहाँ पर उसने अपने प्राणों को दिया ताकि आप सब बच सके। And people who fall sick, और लोग जो चंगाइट, जो people who बीमार are caught with sickness and disease, और ऐसे लोग जो बीमारियों से और रोगों से पकड़े हुए are also like people who are also like these animals and people who fall into a pit. और वो भी एक ऐसे जानवरों के ही समान थे जो उस खड्डे में गिरे हुए थे। It is not your fault, ये आपका गलती नहीं but है, you have fallen into a pit, a trap of the enemy. लेकिन आप उस दुश्मन की जो खड्डे हैं उसमें आप फंस गए उस जाल में। It's like a spiritual attack upon your life. ये कुछ ऐसा है कि आपके जीवन पर आत्मिक हमला हुआ है। Sometimes when people get sick, कभी कभी जब लोग चंगाई को पाते some हैं, people begin to judge them. कुछ लोग उनको न्याय करने लगते हैं। He might have done some sinful activities. हो सकता है शायद इसने कुछ गलत पाप किया हो, Maybe his family has done something wrong. हो सकता है शायद इसके परिवार ने कुछ गलत And किया that is हो, why maybe curse of sickness have come upon him. और इसीलिए शायद उसके ऊपर ये श्राप हुआ कि ये बीमारी आ He जाए। was not a good man. वो एक अच्छा आदमी नहीं होगा He is not a good woman. या फिर एक अच्छी स्त्री नहीं We होगी। began to jump to conclusions. हम सीधा ही जो परिणाम है हम उस पर कूद जाते हैं। We began to blame the family. हम परिवारों पर इल्जाम That लगाते is हैं। why sometimes when family gets sickness, we don't want to tell people that we got sick. तो इसीलिए जब कभी भी परिवार है वो बीमार हो जाता है तो वो सोचता है कि वो ना बताए किसी को कि हमारा परिवार बीमार है। When the enemy touched my family in 2021, जब शैतान ने मेरे परिवार को 2021 he में wanted हुआ to था, kill me, my wife, and my 2 kids. वो चाहता था मुझे मारना, मेरी पत्नी को और मेरे 2 बच्चों को मारना। All of us were infected with COVID. Me and my wife were in the hospital. मैं वो हर एक जन को मारना चाहता था जो मैं और मेरी पत्नी है वो अस्पताल में Many भर्ती थी। people were thinking why sickness fell upon this family. कुछ लोग सोच रहे थे कि क्यों बीमारी इनके परिवार के ऊपर आ What गई। kind of sin have they committed? उन्होंने कौन सा पाप किया है, What kind of a wrong have they done? किस प्रकार की गलती उन्होंने And we की है, begin to come and jump to conclusion. और वो हम सीधा ही उस परिणाम में हम आ जाते हैं।
the sickness is a trap of the devil. जो बीमारी है ये उस शैतान का एक जाल होता है, It is a spiritual attack. ये एक आत्मिक हमला होता है। And during this time, it is not a time to find fault. Why did I get sick? Why did she get sick? Why did this happen to me? Why did this happen to my family members? और ये समय कुछ ऐसा है जब अब हमें ज़रूरी है कि हम बोले, हम लड़े, कि जरूरी नहीं है कि हम लड़े, कि हम बोले कि क्यों जो मेरा परिवार है वो बीमार में पड़ा है, क्यों मैं बीमार पड़ा हूँ। But it is a time to seek the Lord Jesus Christ. लेकिन अभी ये समय है कि हम प्रभु यीशु को खोजें। He is your healer. वो आपको चंगाई देने वाला Good है, shepherd. वो आपका एक अच्छा He is चरवाहा the है। lamb that was being given as a burnt sacrifice and offering. वो एक मेमना है जो कि हमारे लिए एक बलिदान के रूप में दे दिया। And I want you to understand why healing is your divine inheritance. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझे कि जो चंगाई है क्यों वो आपकी एक आत्मिक वसीयत है, Why जो you आपके लिए can claim on the power of the healing that Jesus has given to us on the cross. क्यों जरूरी है कि हम उस चंगाई को बोलें जो यीशु मसीह ने हमें उस क्रूस पर दी है। In the book of 1 Peter chapter 2 verse 24 and 25, पहला पत्रस की पुस्तक उसका अध्याय 2 का 24 और 25, it says, He himself bore in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए उधर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। There are some things that this passage tells you. कुछ ऐसी बात है जो ये वचन आपको कहता है। First of all, it says that Jesus, he's a man character here. Jesus took all of our sins on his body. तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताता है कि जो यीशु मसीह उसके चरित्र के बारे में, कि उसने आपके सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। There are two gifts because of that. और उसकी वजह से यहाँ पर दो वरदान हैं। One is we are saved from our sins. पहला ये कि हम अपने पापों से बचाए गए, You will die to your sins. अपने पाप के लिए मर गए हैं। Number two, you began to live in the righteousness of Jesus Christ. और दूसरा ये है कि अब आप खुदा की धार्मिकता में जिएंगे। And when you begin to live in the righteousness of Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता में जीते हैं, it says you will live when your wounds are healed in the name of Jesus. तो वो कहता है कि अब आप जिएंगे जब आपके जो घाव हैं वो यीशु मसीह के नाम से ठीक होंगे। Living a righteousness also includes the gift that God has given you, which is you will be healed by his wounds. और उसकी धार्मिकता में जीना, उसमें ये भी शामिल है कि जो चंगाई जो खुदा ने आपको दी है कि उसके द्वारा, घाव के द्वारा आप And चंगा that पाए। is living in righteousness. और ये है उस धार्मिकता में जीना। Living in righteousness, coming out of your sin, living in the righteousness of Jesus, which also includes by his wounds you are healed. और उसकी धार्मिकता में रहना ये है कि आप उसकी धार्मिकता जिए, यीशु मसीह की धार्मिकता में जिए और उसके घाव के द्वारा। Now again in the book of Matthew chapter 8 verse 17, अब हम मत्ती की पुस्तक उसका 8 के 17 में जाएंगे। it says, He took up our infirmities and he bore our disease. उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Now it is pointing to Jesus. और अब ये यीशु की ओर दिखा रहा है, Pointing to Jesus who is the overcomer, who is the victorious man और here. अब ये यीशु की ओर संकेत कर रहा है जो कि एक विजेता है, That he took up our sins, कि उसने हमारे पापों को ले लिया, took up all our disease, उसने हमारे हर एक बीमारियों को ले लिया, all the disease that you have been carrying your life. हर एक वो बीमारी जो आप अपने जीवन में अपने साथ लेकर चल रहे थे, Sickness that you have been carrying in your life. हर एक रोग बीमारी जो आप अपने जीवन में अपने साथ लेकर चल Today रहे थे, he takes it upon himself. आज उसने वो सब अपने ऊपर ले लिया। Now many times many of us are mothers, our father and mother here. और कई बारी हम में से यहाँ पर जो ज़्यादा जन है वो शायद माता पिता नहीं है। When you see your child suffering with sickness, जब आप अपने बच्चों को किसी बीमारी से परेशान होता हुआ you देखेंगे wish you could take the sickness upon you. और आप ऐसी इच्छा रखेंगे कि
काश आप उसकी बीमारी अपने ऊपर ले लें, and you wish that you would free a child. और आप इच्छा रखेंगे कि आप उस बच्चे को आजाद छोड़ें, And far more than that, और उससे कई आगे when बढ़कर Jesus sees your struggles and pain, जब यीशु मसीह आपकी परेशानी और आपके दर्द को when देखता है, Jesus sees your sin, जब वो आपके पापों को देखता when है, Jesus sees your sickness, जब वो आपकी बीमारियों को देखता है, He is willing to go further beyond the love of a mother. वो इतना ज्यादा इच्छुक होता है कि वो एक माँ के प्यार से भी कई ज्यादा आगे बढ़ जाए, Because He loves you so much. क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम रखता है। Do you believe He loves you? क्या आप विश्वास रखते हैं कि वो आपसे प्रेम रखता है? Do you believe that He has taken your sins, your sickness, your pain upon Himself? क्या आप विश्वास रखते हैं कि उसने आपकी हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दर्द को अपने ऊपर ले लिया है? And that is what it says, He take upon Himself the infirmities of your life, the diseases of your life, the pains of your life, or your anxiety, your depressions upon Himself. और इसीलिए कहता है कि उसने आपकी दुर्बलताओं को, आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को, आपकी चिंताओं को, आपकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया है। Jesus is the finisher. जो यीशु मसीह है वो खत्म करने वाला है। He finishes all of your burdens. उसने हर एक आपके बोझ को खत्म कर दिया है, And today He declares to you that He wants to carry all of your burdens upon Himself. और वो आज वो इस बात को बोलता है कि वो आज आपके हर एक बोझ को अपने ऊपर ले ले। So whom do we go to? तो फिर हम किसके पास जाएं? We go to the person who has finished the work. तो हम उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने कार्य को खत्म कर दिया। We go to the person who has taken and completed sickness. हम एक ऐसी व्यक्ति के पास जाएंगे जिसने हमारी सारी बीमारियों को The ले one लिया। who took upon himself the sin, the sickness of this world. एक ऐसे जन के पास जिसने अपने ऊपर इस संसार की बीमारियों को And ले we लिया, begin to seek the Lord. और हम खुदा को देखते हैं। We begin to seek the face of the finisher. हम उस जो कार्यों को खत्म करने वाला है उसके चेहरे को ढूंढते हैं। How can we go to someone who has not finished the work? हम कैसे जा सकते हैं एक ऐसे जन के पास जिसने अभी तक काम को खत्म ही नहीं करा? How can we go to someone who has not defeated the death? हम कैसे उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने मौत को हराया ही? How can we go to a person who has never risen a dead person to life? हम कैसे उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने अभी तक किसी मृत व्यक्ति को जिलाया? How can we go to a person who has not delivered any demons and sickness? हम कैसे उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसने अभी तक किसी को भी दुष्ट आत्मा से नहीं छुटकारा दिला? But we go to the person, we go to him who has finished all. And on the cross he said, it is finished. लेकिन हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसने जो कहता है कि जिसने सब कुछ उस क्रूस पर समाप्त कर दिया। This afternoon we were enjoying the worship. आज के दिन दोपहर हम आराधना को And बहुत ही on आदर every कर रहे हैं, Sunday we worship the Lord. और हर इतवार हम खुदा की उपासना कर रहे हैं। Almost we worship him. यहाँ तक कि घर में भी हम उसकी उपासना करते हैं। Why do you worship him? क्यों आप उसकी उपासना करते हैं? Already our dear brother, our dear uncle Peter has explained what worship would mean. और जैसे कि जो हमारे भाई और हमारे अंकल पीटर है उन्होंने बताया कि जो उपासना है वो क्या है। And one of the reasons for worship is to magnify the name of our Lord Jesus Christ. और एक जो कारण है उपासना का वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना, Exalt him to praise him. उसको महिमा देना, उसके नाम को ऊंचा But उठाना। do you think he is not magnified? क्या आपको ऐसा लगता है, सोचते हो कि क्या वो नहीं ऊंचा Do you उठाया जा think रहा? he is not praised? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी महिमा नहीं हो रही? There are lakhs of angels singing for him in heaven. लाखों स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में उसकी उपासना कर रहे हैं। When King David decided to build a temple along with his son, King Solomon, he decided to choose thousands of people who would sing for Jesus, who would sing and come together as a choir for God in the temple. जब राजा दाऊद ने सोचा अपने पुत्र के साथ, सुलेमान के साथ, कि वो खुदा के लिए एक मंदिर बनाएगा, तो उसने कई हजार लोगों को चुना था कि वो उस खुदा के भवन में उसके लिए गीत गाएंगे। Why do you magnify the Lord? क्यों आप खुदा के नाम को उठाना चाहते हैं? Because he needs to be magnified in your life. क्योंकि वो आपके जीवन में महिमा पाना We need to चाहता है। see more of Jesus in our life. हम आपके जीवन में और ज्यादा बढ़कर ये Greater देखना than your चाहते हैं। problems. आपकी
समस्याओं से greater बढ़कर, than your sickness, आपकी बीमारियों से greater बढ़कर, than your disease, आपके रोगों से बढ़कर, greater than your depression. आपकी चिंताओं से बढ़कर। Many times we like to speak about our problems. कभी कभी आप सोचेंगे कि आप अपनी समस्याओं के बारे में You बताएं, like to speak about your poverty. आप अपनी गरीबी के बारे में You like बताना to speak चाहेंगे, about your anxiety. अपनी चिंताओं के बारे में बताना When a चाहेंगे। problem will fall upon you, you want to call up your friends and tell everybody about your problems and your problems and your problems. जब भी कभी आपके ऊपर समस्या आती है, आप अपने दोस्त को फोन मिलाते हैं और सिर्फ अपनी परेशानी और परेशानियों को ही सुनाते हैं। Jesus looks so small to you. जो यीशु मसीह है वो आपको बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है, And that is the moment when Jesus needs to be magnified in your life. और यही वो पल होता है जहाँ पे यीशु मसीह की महिमा हो। Greater than your sickness, आपकी बीमारी से बढ़कर, greater than your disease, आपके रोगों से बढ़कर, greater than all the lie the devil is speaking to you every day. हर एक उस झूठ से बढ़कर जो शैतान आपसे हर रोज बोलता है That you will die. कि तू मर जाएगा, You will surely die. आप निश्चित ही मर जाएंगे। Your career will fail. आपका जो करियर है वो खराब हो जाएगा, Die in depths. आप कर्जों में मर जाएंगे, You will never be able to walk. आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, You will never have a new organ. आप कभी भी नया अंग नहीं पाएंगे। And that is why we come and magnify the name of our Lord Jesus Christ. और इसी रीजन कारण से हम कभी भी यीशु मसीह के नाम को Not महिमा for देंगे। him, but for you. हाँ, वो उसके लिए नहीं लेकिन सिर्फ आपके लिए। Magnifying God in your eyes. खुदा के नाम को बड़ा करना अपनी ही नजरों में। When we look into 1 Peter chapter 2 verse 24, जब हम देखते हैं पहला पत्रस की पुस्तक उसका अध्याय 2 के 24 में, it talks about dying to sin and living with righteousness. ये बताता है कि अपने ही पापों के लिए मर जाना और खुदा की It धार्मिकता में। encourages you to live in the righteous consciousness. ये आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप उसकी धार्मिकता में जिए। When you begin to walk, जब आप चलते हैं, when you begin to live, जब आप जीना when शुरू you're करते हैं, going to work, जब आप दफ्तर में जाते हैं, when you're working in your home, जब आप अपने घर में काम do कर रहे you होते हैं, practice the presence of God in your life? क्या आप इस बात का प्रैक्टिस करते हैं, इस बात को आप करते हैं उस खुदा की उपस्थिति, Do you only feel the presence of God when you come to the church? या फिर आप खुदा की उपस्थिति को सिर्फ जब ही महसूस करते हैं जब आप कलीसिया में आते हैं? Are you conscious of who you are? क्या आप इस बात को सोचते हैं कि आप कौन हैं? The Bible says, my people are destroyed because of the lack of the knowledge of the Word of God. वचन कहता है कि जो मेरे लोग हैं वो इसलिए विनाश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास खुदा के वचन की You कमी है। are dying every day in your depression, anxiety, because you do not know the promises of the Father. आप हर रोज अपनी मानसिक तनावों में, अपनी बीमारियों में, चिंताओं में आप मर रहे हैं क्योंकि आप खुदा के वायदे को जानते ही You do नहीं। not know your identity. हो सकता है कि शायद आप अपनी पहचान को भी न There's जानते a हो। story एक कहानी है about an eaglet. एक ईगल की, बाज की, How an eaglet, a baby eaglet, an egg roll out from the nest of an eagle. कि किस प्रकार से कि जो उस बाज के घोंसले में से एक अंडा लुढ़क जाता है, The egg went and mingled with the eggs of other chickens. जो वो अंडा है बाज का, वो जाकर जो मुर्गी के बच्चों के साथ, अंडों के साथ When शामिल हो the egg जाता है। was hatched, जो अंडा जब वो फूटता है, the eaglet lived and grew among the chickens. जो बाज का जो बच्चा है वो बड़ा होता है उन मुर्गियों के बच्चों के साथ। As she began to grow, जैसे ही वो बढ़ने he लगता है, looked to the sky. वो आसमान की ओर He देखता है saw big eagles, और वो बड़े बड़े बाजों को देखता है and he wished that he was an eagle one day. और वो इच्छा रखता है कि काश वो भी एक दिन बाज बन He जाए। wanted to be an eagle. वो एक बाज बनना चाहता He था। didn't know he was an eagle. वो जानता ही नहीं था कि वो बाज ही है। So different. वो बहुत ही अलग दिखता था। And one day an eagle flew around that area. और एक दिन जो वो बाज है वो उस जगह से वहां पे उड़ रहा होता है And he said, "What are you doing here? और वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? Why are you living among the chickens?" तू इन मुर्गियों के बीच में क्यों रह रहा He है? said, "Because I'm a chicken." वो कहता है क्योंकि मैं मुर्गी हूँ। He said, "You are not a chicken. वो कहता है कि तू मुर्गी नहीं, You are an eagle." तू एक बाज है। He said, "Yes, I wish I was an वो eagle." कहता है कि हाँ मैं इच्छा रखता हूँ कि काश मैं एक बाज होता, लेकिन मैं एक मुर्गी ही हूँ। And he said, "No, come on, try to fly. You are an eagle. You can fly."
वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोशिश कर उड़ने की, तू एक बाज है। He could never fly वो नहीं उड़, because he believed he was a chicken and not an eagle. क्योंकि वो विश्वास रखता था कि वो एक मुर्गी है, एक बाज नहीं। Many of us we live our life like chickens. हम में से बहुत से जन है जो इसी मुर्गी की Many तरह of us we live life without being aware of who you are, sons and daughters of the Most High God. हम में से बहुत से जन है जो इसी सोच समझ के साथ जीते हैं कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। You do not want to accept that you are the son of the Most High God. आप इस बात को स्वीकारना ही नहीं चाहते कि आप उस सर्वशक्तिमान खुदा के पुत्र और You don't पुत्री want हैं। to believe that you can be healed. आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहते कि आप चंगाई You don't पा want to सकते हैं। believe that you can be delivered. आप इस बात पर विश्वास नहीं रखना चाहते कि आप छुटकारा You पा don't want सकते to हैं। believe that God can give you success in your life. आप इस बात पर विश्वास नहीं रखना चाहते कि खुदा आपको कामयाबी दे And सकता you है। begin to live with this false ideology and personality understanding about yourself. All of your life you will live and you will die like a chicken. और आप अपने पूरे जीवन भर हमेशा इसी सिद्धांत के साथ रहते हैं और हमेशा उसी पे ही विश्वास करते हैं, और आप एक दिन उस बात जो अपने आप को मुर्गी समझता था मर जाएंगे। And the book of 1 Peter chapter 2:25 says, you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and the overseer of your soul. पहला पत्रस की पुस्तक उसका अध्याय 2:24 कहता है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। पहले था लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि आप जो है आप लोग लौट चुके हो. Now you have returned to the shepherd. और अब आप अपने चरवाहे के पास लौट आए You are now under the care of the shepherd. और अब आप उस चरवाहे की रखवाली You now live in the inheritance that he has given you. और अब आप उस वसीयत जो खुदा ने आपको दिया आप उसमें जीते। When you look in the book of Leviticus chapter 7 verse 8, जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका अध्याय 7 के 8 में देखते हैं, it talks about the burnt offering. ये बताता है वहाँ पे बलिदान के बारे में। It talks about how the priests would give an offering in the Old Testament. ये बताता है कि जो किस तरीके से जो पुजारी था वो पुराने नियम में वहाँ पे भेंटों को दिया करता था। Animals been offered. वहाँ पे जो जानवर थे उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। It says whoever present the offering, the skin of the animal would belong to the person who did offering. लेकिन ये कहते थे कि जो भी आदमी अपनी भेंट को जानवर की चढ़ाएगा उसकी जो खाल है वो उसकी होगी जो उस भेंट को चढ़ा रहा है। If Jesus is your burnt offering, अगर यीशु आपकी पाप बलि है, hallelujah. Amen. If Jesus is your burnt offering, अगर यीशु आपकी पाप बलि है, he died for your sin, वो आपके पापों के लिए मर गया, then the skin belongs to you. तो जो मांस है जो खाल है वो आपकी है। The skin of Jesus belongs to you. जो यीशु की जो खाल है वो आपसे नाता रखती है। The healthy skin, एक स्वस्थ the strength, एक ताकत, the vitality, उसकी जो वाइटलिटी है, power of Jesus. यीशु की जो It सामर्थ है belongs to you if Jesus is your burnt offering. वो आपकी है अगर यीशु ही आपका पाप बलि है। You see, when Jesus was striped, आप देखेंगे जब यीशु को कोड़े मारे, he was striped 39 times. उसको 39 बार कोड़े मारे But गए, it seems in one of the stripe, लेकिन आप देखेंगे कि एक कोड़े में there were about 4 or 5 connections of nails and irons and glasses connected to that one whip. आप देखेंगे कि एक जो कोड़ा था वो कुछ ऐसा था जिसमें कांटे थे, कीले थी और कांच के कुछ अंश थे। So when one stripe was given, तो जब एक बार कोड़ा मारा जाता, there was just not one stripe. वहां पर सिर्फ एक ही बार There were नहीं था, about 4 or 5 stripes in the body. उनके शरीर में 4 से 5 So बार when मारा गया। 39 stripes were given, तो जब 39 बार कोड़े मारे गए there was not a single piece of his body that was not pierced. तो उनके शरीर का एक सिंगल हिस्सा भी नहीं था जिसको भेदा नहीं गया। Psalm 22 verse 17 says that I can count my bones. तो भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 22 का शायद कहता है कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता The हूँ। prophecy says that Jesus could look upon himself and he could count and see the bones in his body inside the skin. भविष्यवाणी ये है कि यीशु मसीह जब उस क्रूज पर था तो वो देख सकता था, अपनी हड्डियों को गिन सकता था जो उसकी चमड़ी हुई उधेड़ी हुई मांस के नीचे। Why did he do that? क्यों उसने क्यों ऐसा किया? Because when you sin, it demands life. क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो वो जीवन की इच्छा And the penalty of sin is death. और
पाप की जो सजा है वो मृत्यु है, And only it has to be, and that can only be wiped by sacrificing with your blood. और वो सिर्फ जब ही धुल सकता है जब एक खून की बलि थी। But Jesus took your sins upon himself. लेकिन यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर ही ले He लिया। became a lamb and a sacrificial lamb and an offering for you. वो हम सब के लिए, आपके लिए एक मेमना बना बलिदान के लिए। You have a death penalty. आपके ऊपर एक कर्ज है, You have a death penalty. आपके ऊपर एक मृत्यु का But कर्ज है, Jesus took that penalty for himself. लेकिन यीशु ने उस कर्ज को अपने ऊपर लिया। Became your sacrificial offering. यीशु मसीह आपका एक बलिदान बन गया। He became your burnt offering. वो आपके लिए एक पाप बलिदान बन गया। Come on, everyone say, Jesus, you become my burnt offering. आइए हम सब कहें मिलकर कि यीशु तू मेरे लिए पाप बलिदान बन गया। पाप Jesus, you are my burnt offering. खुदा तू मेरे लिए पाप बलि है। Come on, everyone. Jesus, you are my burnt offering. खुदा आप मेरे पाप बलि हैं, And therefore, I take your skin. तो इसीलिए मैं आपकी मांस को लेता हूँ। Skin of health. एक स्वास्थ्य की The चमड़ी, skin of righteousness. एक धार्मिकता की चमड़ी The skin of walking with great strength. और खुदा के साथ एक सामर्थ्य में चलने वाला। Not only that, सिर्फ इतना ही, in the book of Psalm 105, verse 37, भजन संहिता की पुस्तक उसके 105 के 37 में है, it says, He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उसमें से कोई निर्बल ना था। Do you know who were the Israelites? क्या आप जानते हैं कि जो इज़राइली लोग थे वो Israelites were living as slaves under the power and authority of the Egyptians. जो इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र की जो ताकत है, अधिकारी है, उनके नीचे गुलाम रहते थे। And then they were asked to celebrate the Passover. तो फिर उनसे कहा गया कि तो जो फसह का पर्व है उसको मनाओ। They were supposed to cut a lamb, वहाँ पर ऐसा होता था कि वो एक मेमने को काटते थे, blood on the doorpost. वो दरवाजे की चौखट में उस And when लहू को लगाते थे, partake in the sacrificial lamb, और जब वो उस मेमने की जो बलिदान है उसमें वो they हिस्सा लेते would थे, come out of Egypt तो जब वो उस मिस्र से बाहर आए healthy, स्वस्थ थी, strong. ताकतवर, It says none of them were feeble. वो कहता है कि कोई भी जन कमजोर नहीं था। Feeble means none of them were such that they could not walk. Everybody could walk. 80, 90, 100 years of age, they could just walk. निर्बल ऐसा नहीं कि वो ये था कि हर एक जन, चाहे वो 80, 90, 100 साल का हो, हर एक जन चल सकता था। When they took part in the Passover, जब वो उस फसह के पर्व में जब उन्हें हिस्सा लिया, and not only that, when they came out, the gold and silver was given in their hands. सिर्फ इतना ही नहीं, जब वे वहां से बाहर निकले तो सोना और चांदी उनके हाथों में सौंप दिया गया। Jesus wants to touch every area of your life, तो यीशु मसीह है आपके जीवन के हर क्षेत्र को वो छूना चाहता है, which also includes your financial problem. जिसमें ये भी शामिल है कि आपकी जो आर्थिक तंगी है उसमें भी। I know what a financial debt is. मैं जानता हूँ कि जो आर्थिक कर्ज है वो I क्या used to है। tell you when I came out of the hospital, I had a debt. मैंने I have a medical bill debts of more than 25 lakh rupees. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस अस्पताल से बाहर आया तो मेरे ऊपर 25 लाख से ज्यादा कर्जा था। Though I did not have any medical insurance for COVID. मेरे पास कोई भी मेडिकल के इंश्योरेंस नहीं थी, But when Jesus healed me, लेकिन जब यीशु ने मुझे चंगाई दिया, touched me, लेकिन जब यीशु ने मुझे He not only give me a new life, उसने सिर्फ मेरे को नया जीवन नहीं but He दिया, also cancel all of my debts within 3 months of time. लेकिन उसने 3 महीने के अंदर मेरा सारा कर्ज खत्म कर दिया। Imagine today you have Jesus in your life. सोचिए अगर आज आपके जीवन में यीशु है आपके, How much more He can do for you compared to the people of Israelites who were just celebrating a shadow of the true Lamb. वो सोचिए तो वो आपके जीवन में कितना कुछ कर सकता है, उससे कई गुना बढ़कर जो वो उन्होंने इजराइल के लोगों के लिए किया, जो वहाँ पर सिर्फ एक उसकी परछाई थी। You have Jesus in your life. आपके जीवन में He यीशु can है, do much more than He did to the people of Israelites. वो जो इजरायली लोगों के लिए जो उसने किया वो उससे कई ज्यादा बढ़कर आपके लिए कर People, सकता a है। good health, वो आपको एक अच्छा He स्वास्थ्य can दे सकता है, also cancel your financial debt. वो आपके आर्थिक कर्जों को खत्म कर Today सकता है। I'm going to pray not only for your deliverance, आज हम प्रार्थना करेंगे सिर्फ आपके छुटकारे के लिए नहीं, deliverance of demonic possession,
जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, or उन्हीं any खाने kind के of लिए, sickness that has engulfed your life. या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी जो आपके जीवन में है। So asking God to cancel your financial debt. लेकिन आज हम ये भी प्रार्थना करेंगे, खुदा से मांगेंगे कि वो आपके आर्थिक कर्जों I want की you to be spiritually ready. मैं चाहता हूँ कि आप आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं। Let's begin to pray for you. जैसे कि अब हम आपके लिए प्रार्थना We're करेंगे, going to pray for you. हम आपके लिए दुआ I करेंगे। want you to be in a posture of receiving. मैं चाहता हूँ कि अब आप इस भाव में आ जाए कि आप उसको ग्रहण करें। What does the book of Exodus 12:11 says? निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 12 का 11 कहता है, In this word it says, "You shall eat with a belt on your waist, with sandals on your feet, and your staffs in your hand. So you shall eat it with haste, and it is the Lord's Passover." उसने कहा, उसके खाने की यह विधि है, कमर में बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। It is an attitude, ये एक स्वभाव, an attitude and a posture of receiving. एक ऐसा स्वभाव जहाँ पर आप ऐसे भाव में आते कि आप ग्रहण Tell करें। your mind to shut up. ये ऐसा समय जहाँ पर आप अपने दिमाग से कहे चुप हो जा। You have to tell your mind to just shut up. आपको अपने दिमाग से कहना होगा कि चुप हो जा, And you have to receive Jesus with your heart. और आपको ये पूरे मन से यीशु को Do ग्रहण। you want to be healed? क्या आप चंगाई पाना Want चाहते to be हैं? delivered this afternoon? क्या आप आज छुटकारा पाना चाहते हैं? Today, Jesus is going to heal you. आज यीशु आपको चंगाई देने वाला है।